Hi, welcome back. If I ask you, do you remember the last stroll you took? Maybe after dinner or with friends? Is it just me or you two agree that walking is the best cardio? I mean, I tried Zumba, gym, Pilates at home, but none of them can bring me the same joy as walking does. It's peaceful, thoughtful, and carefree. It's almost like a meditation where I'm not sitting in a quiet room trying to focus in between my eyes, but my vision goes as far it can go. I can see parrots camouflaging in canopy, eating some seeds, squirrel nibbling on bark, probably small green birds chirping in unison as if discussing whole day plan. A crow taking path as if doing, get ready with me in 5 seconds. A dog peacefully sleeping in such a position which I wish to replicate after a long, tiring day. Wind just breezing through leaves, and a cool air upon face. Think for a moment and take a deep breath. Slowly, it feels so lively. And sometimes it makes me feel I'm Alice in Wonderland. It's so soulful and relaxing, isn't it? But nowadays it's so difficult to find such a place. आजकल तो घर से निकलो तो चलने की जगह जैसे गायब ही होती जा रही है। फुटपाथ्स तो लगता है पेडेस्ट्रियन के लिए नहीं बल्कि गाड़ियों के लिए बनी है क्योंकि पार्किंग भी उसमें ही है। ग्लोबली अगर देखा जाए तो फुटपाथ को चलने के लिए बनाया गया है, पर हमारे यहाँ पॉट होल से बनी थोड़ी बहुत सड़क से ज्यादा सेफ तो फुटपाथ है। अगर उसमें चलने जाओ तो पीछे से कोई हॉर्न बजा देता है। Do you know Supreme Court of India has officially ruled that right to walk on safe, demarcated and unobstructed footpath is a fundamental right. ये हमारा मौलिक अधिकार है, पर सभी अधिकारों की तरह क्या ये हमें मिल पा रहा है? I would say yes and no, but with its own consequences and terms and conditions. और ये लैंडमार्क जजमेंट आया एक बहुत ही घातक दुर्घटना के बाद, जिसमें एक 5 साल का बच्चा जब स्कूल से अपने पिता के साथ वापस आ रहा था, उसी वक्त एक स्पीडिंग टैंकर आकर उससे टकरा गया। अब पता चलता है वहां पर नाम का फुटपाथ भी नहीं था। But seriously, our cities, roads are made so unsafe for pedestrians. Urban design structurally are made make us to neglect walking by prioritizing motorized vehicle. For pedestrians, somewhere fragmented, blocked, or non-existent sidewalks are left. Vast majority of municipal budget and road space is allocated to flyovers, highway widening, and vehicle parking. और पॉटहोल्स क्योंकि वो जरूरी हैं, एक दो दिन बाद तो अपने आप प्रकट हो जाते हैं और उनके साथ यमराज भी। और अगर सड़क के बाद थोड़ी सी जगह बच गई तो उसमें इलीगल पार्किंग, बोट्स और बचे हुए फुटपाथ में कुछ ना कुछ तो रहता ही है। फिर अगर उसमें चलने का सोचो तो वो इतना ऊंचे नीचे बने होते हैं कि नजर हटते ही फोन के साथ मुंह के बल गिर जाए इंसान। ये फुटपाथ दो पैर वाले लोगों के लिए सेफ नहीं है, तो व्हील चेयर यूजर्स के लिए तो एक्स्ट्रा फैसिलिटी कहीं से भी प्रोवाइड नहीं की जाती। लेकिन आखिर चलना जरूरी क्यों है? 10 मिनट की डिलीवरी एप्स हैं, कैब बुक करके ऑफिस, फिर ऑफिस से घर, कदम घर के अंदर रहते रहते ही घर के बाहर के सारे काम पूरे हो जाते हैं और बहुत कन्वीनियंट भी है। सो व्हाई डू वी इवन नीड वॉकिंग? Because that's what is missing from our busy life. We are diabetic capital of world. We have teenagers taking those insulin shots. We have highest non-communicable diseases surging up. रोज के महज 30 मिनट चलना can lower blood pressure and reduce risk of heart attack. Regular movement improves insulin sensitivity. And that's why we need safe pedestrian space, which lowers stress and foster social connection within communities. Currently, we are facing a burden of NCDs. There's a chronic disease epidemic, which is causing a large, huge bill on family. According to report, if a family member has diabetes, they have to spend rupees 4,381
annually. A blood pressure patient spends rupees 1427, and these NCDs cover India's GDP from 5 to 10%. इन सब के बावजूद हमारे यहाँ लोग दवा की लंबी लंबी लाइनों में लगने के लिए तैयार हैं, बट एक प्रिवेंटिव स्टेप की तरफ कोई ध्यान क्यों नहीं देता? ऐसी क्राइसिस में walking, which is a viable option, and it does not require a prescription or a hospital visit. We just need a space to walk. A 2013 study in thrombosis and vascular biology found that walking can lower risk of blood pressure nearly as much as running when similar amount of physical activities are undertaken. But our cities largely built for mobility of vehicles, not for their owners. Without it, 54% of Indians are inactive on average, as urban residents being more inactive. It goes up to 65%, and rural accounts to 50%. Most shocking data is we have less than 10% of our population which engage in any recreational physical activity. We are not voluntarily choosing to be sedentary, but the surrounding and environment is made up in such a way that we don't have a choice. We don't have options. Until a footpath is made a mandatory condition for road approval, we cannot combat rising NCDs from staying inside our home. बट एक मेट्रो सिटी में रश आवर में हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि कोई पैदल चलना सही समझेगा? जब घर से मेट्रो स्टेशन तक 5 या 10 मिनट के रास्ते पर चलकर जाया सकता है, तो वहां पर अर्बन डिजाइन को इंटीग्रेट करके वॉकिंग एज अ चॉइस को इंजीनियर कर सकते हैं, और शॉर्ट डिस्टेंसेस में पैदल चलने वाला इंसान रेंगना तो सही नहीं समझेगा क्योंकि उसको भी देर होगी. सो अगेन, वॉकिंग इज एन ऑप्शन. हमारे आसपास के नेबरिंग कंट्रीज ने ऐसा किया है, जैसे कि बांग्लादेश वर्ल्ड बैंक के साथ कोलैबोरेट करके आर्किटेक्चरल बैरियर्स जैसे कि ऊंचे नीचे फुटपाथ, ओपन ड्रेन्स को लीगली हटाया गया और ऑटोमेटेड नाइट लाइट और लोकल नेचुरल शेड वाले पेड़ लगाए गए, जिससे ट्रॉपिकल हीट से भी बचा जा सकता है. श्रीलंका ने अपने पुराने हिस्टोरिक लेआउट को ध्यान में रखते हुए स्ट्रिक्ट व्हीकल जोन्स को इम्प्लीमेंट किया कल्चरल हब्स के आसपास, जिससे एक शांति का माहौल विजिटर एक्सपीरियंस कर सके. गवर्नमेंट ने रोड पर सिर्फ कार चल सकती हैं इसकी पॉसिबिलिटी को कम किया और पेडेस्ट्रियंस की सेफ्टी को प्रायोरिटी. भूटान एक छोटा सा खुशनुमा देश, इसने भी कुछ ऐसा ही कर दिखाया, जिससे पब्लिक हेल्थ भी ठीक रहे और एयर क्वालिटी भी. थिम्पू में व्हीकल फ्री रोड नहीं डेज इम्प्लीमेंट किए गए, जिससे पूरा घर खानदान सभी निकल सके रोड में बिना किसी टेंशन की कि कोई पीछे से हॉर्न बजा देगा. मतलब अगर किसी ने शादी में सपरिवार लिख कर इनवाइट किया तो पूरा खानदान रोड को छेक के चल सकता है. ये तो हुई साउथ एशियन कंट्रीज के बारे में. डेवलप्ड नेशंस ने वॉकिंग को एक हैबिट बनाया है और वो हमारे यहाँ लग्जरी है. पेरिस, एम्स्टर्डम और लंदन में कंटिन्यूअस ग्लास विंडोज, कैफे, विंडो शॉपिंग और स्ट्रीट आर्ट बनाए गए. इससे ब्रेन को एक विजुअल स्टिमुलाई मिलता है और बात करते करते 2 कदम कब 2 किलोमीटर बन जाते हैं इसका पता नहीं चलता. इसको अर्बन प्लानिंग में हाई विजुअल परमिएबिलिटी बोलते हैं. मतलब अगर कभी जाने का मौका मिले तो इन सिटीज को चलकर एक्सप्लोर करना. यू वोंट फील टायर्ड. देन डेवलप्ड नेशंस ने रोड को डिजाइन किया 8 to 80 रूल को ध्यान में रखते हुए. अगर एक 8 साल का बच्चा या 80 साल का व्यक्ति उस साइड वॉक पर नहीं चल पा रहा कंफर्टेबली, देन इट्स अ फेल्ड डिजाइन. उसमें स्ट्रक्चर्ड फिजिकल बैरियर होना कंपलसरी है टू कीप इट सेपरेट फ्रॉम हाई स्पीड ट्रैफिक. टोक्यो और सिंगापुर में इसे और आसान बना दिया गया, जैसे कि उन साइड वॉक्स को शेल्टर करके और कंसिस्टेंट स्टेबल कंटिन्यूअस फुटपाथ को मेंटेन साइड वॉक्स को बनाना. मतलब अगर फोन देखते देखते कोई इंसान चल रहा है तो मुंह पर गिरने के उसके चांसेस और भी कम हो जाते हैं. बार्सिलोना ने सुपर ब्लॉक्स को डिजाइन किया, इनर स्ट्रीट्स को ट्रांसफॉर्म कर दिया इनटू पब्लिक प्लाजास, जहां पर कार्स केवल अब 10 किलोमीटर की स्पीड पर ही ट्रैवल कर सकती हैं और रोजमर्रा की चीजें जैसे कि ग्रोसरीज, स्कूल्स, क्लिनिक्स और पार्क
सभी बस 15 मिनट की दूरी पर है, which makes walking a natural, fastest, and logical transport option. This all countries shows if the intention is to improve public mobility and health, development can be done sustainably. So this is the end of video. Tell me your opinions in the comment section. Until then, bye bye. I'll meet you in next one. Bye.